only is for you free of cost. So I never charge and for data files for and I'm not reluctant to share the material to the participants of the workshop. So I already shared all the material, and I think and I believe that you people have already installed this particular software in your laptop, in your computer systems. And now we are going to discuss one by one the different commands we are going to use in M Plus software. So first of all, we need to define what do you mean by this particular M Plus program. M Plus software is a statistical tool. It is a program for the analysis of quantitative data. You can handle both type of data like categorical and like the data on the continuous variables. So today we are going to handle the data on continuous variables. So we can handle different types of analysis like the multivariate analysis, like the factor analysis, CFA, EFA. We can handle the latent variable, or you can say the unobserved variable, the qualitative variables, and we can apply the structuration modeling, and we can also apply the multi-level modeling technique using M plus software. This is very unique software in nature, and this is the command-based software. The company tried to convert it into the graphical user interface by introducing the language generation option. But the beauty of this software that you need to again apply the commands, because the language generator is also generate the different types of commands you are going to apply while analyzing your data. So I'm going to discuss the different commands of M plus we are going to apply one by one. The first command we are going to use title, the second command is data, and the third command is variable, then model, then define, then analysis, and the last one is output. So we can skip the analysis and also define and but rest of the commands are very important for the analysis point of view. So I'm going to discuss one by one, and I will share these slides with you people after ending of this session. So the first command we are going to apply in M plus software is title. Title command allows you to give the title of your project. For example, if you are going to apply this software for structuration modeling, so the title of your project may be the SEM. So if you are going to apply the CFA, confirmatory factor analysis, or EFA, or multi-level, or the mediation or moderation analysis, you can type your title, or you can give the title according to the title of your project. For example, if you are doing research on the motivation and performance of your employees, then you can give the title motivation and performance. So it is your choice, but there is a limitation that you cannot add more characters in in one line. You need to break up the line, and you need to put if your title is too long. So M plus software will not accept, and it does not like the long title or long commands you mention during the analysis. So this is the first command we are going to apply in M plus software. The command is title command. So but one thing you should keep in mind, whenever we are going to apply any command in this particular software, you need to use colon for after completing the command, semicolon after providing the detail of the particular software will automatically change its color. So it will become blue while you will mentioning the colon sign, and software will understand that you have mentioned a particular command. So after providing the command, you need to put the detail of this command. For example, the command is title, and we have mentioned that the title of this particular project is SEM, or you may give the title of your research paper, but it should be very short.
So now after the title command, we are going to discuss the data command. Data command is also very important command, and this command allows you to give the information about the name of your data file and its location. So we are going to put the two types of information by applying data command. The first information regarding your data file, and the second information regarding your location, regarding the location of that particular data file. So one thing you should keep it in mind, in M plus software we handle two types of file. The first file is input file and the second file is output file. So we need to generate the input file, and software automatically generates the output file. And in the input file, when you generate the input file, you need to save the input file on a particular location. So if your input file location is the same location where your data is placed, where your data is located, mean where your data file is saved, so then there is no need to provide the path like this C user Rab Nawaz Lodi, then desktop, and then mplus.dat file. So if your data file is saved in different location, and your input file is saved on different location, then you need to provide the full path of that particular data file. So it is recommended to save the input file in the same folder where you are going to save your data file. Then you can give the short name of this particular data file location. There is no need to provide the complete location of your data file. So this command is recommended as compared to providing the full data file, because it is very sensitive software, and while you are giving more information, there is a chance to commit some types of error or mistakes. And when you will run this particular software, it will not generate the output file. Your output file will give you the error that there is something wrong in your input file. So it is very sensitive software. So now this is the second command we need to apply, data command, and we are going to discuss the third command, which is the variable command. So in the variable command, this particular command allows you to provide the name of the variables, the constructs, the different indicators or different items of the different constructs of variable you are going to handle in M plus software. So this is a very important command, and when you are going to provide this command, variable command, when you provide this colon sign, it will become blue, and the rest of the part you need to provide the further information relating to this particular command. So you need to provide another information. This is the detailed information about this command, and which is names are. So you need to provide names are. So there should be no mistake if you're writing this particular command names are. So you need to provide the different indicators of the different construct you are going to handle in M plus software. So one thing you should keep in mind that M plus software will allow you to provide to allow you to give the information about the different indicators of the different construct you are going to handle, you are going to calculate, you are going to measure, and you are going to check the relationship between the different constructs. So you it also provide you allow you to provide the information, and then it also allow you that if you have more variable in your data set, but you are not going to use all those indicators or all those variables, then you can apply this particular further detail sub command under the head of variable command. And this command is sub command is use variables are. Use variable are mean if you have more variable in your data sheet, but you are only going to measure only two
variables, and you are only handling only two variables like PSQ and PC. So then you need to provide the detail of only first two lines, and because we are going to use these variables in further analysis, and we are going to skip all the other variables which are available in the data set, but we are not going to handle those variables in our analysis, and our analysis is limited only on these two variables which we have mentioned under the subcommand of use variables. So this is basically the variable command, and practically uh, practically we'll apply all these kinds of commands. So I will request the participants to please mute your mics. Ji. Okay, so this is the variable command, and after this particular command, we are going to discuss the most important command, and this particular command is relating to this command is relating to the analysis, and the testing of your measurement model, testing of your path model, and application of regression or correlation or covariance, and the calculation of the constructs. So when we talk about the model, there are two types of models in structure equation modeling technique. The first model is measurement model, and the second model is path model, or you can say the second model is the relationship model and the structure model. So relationship model and the path model. So now we are going to apply the model command for specifying the measurement model and the path models. So this particular command allows you to provide the information about your measurement and relationship model to be estimated in structuration modeling technique, because the purpose of this workshop is to know about how to apply structuration modeling technique. So I need the pen to point out the different types of command we are going to apply in model command. So the first subcommand in the model command is by. So we use by command uh, for the measurement of for the calculation of your measurement model, for the assessment of your measurement model. So this is by, and these by commands represent that if we need to calculate, if we need to measure PSQ variable, we can measure it by this variable. This variable mean these items or these indicators. So there are 7 indicators to measure a particular construct, and this construct is PSQ, and the next variable is PC. So if we are going to measure the PC, we need to apply PC by to correct it, and this is mistakenly B. So there is no way and to commit any type of a mistake in M plus software. So if you commit, then it will not execute your analysis. Now we are going to discuss these two first two lines represent the measurement model. You know about the measurement model. If you have more than one question to measure a particular single variable or single construct, then the all questions represent like PSQ1, 2, 3, 4. So these are the indicators or these are the items. And we use these items to calculate a particular one construct, which is PSQ. So similarly, PC, we measure PC by calculating all these indicators, and these two lines represent the measurement model. And now we are going to discuss, sorry, two line, no, three lines. So these are the three lines. So SAT, satisfaction, it is measured by SAT 1, SAT 2, SAT 3, 4,
5, and 6. So all these three lines represent the measurement model. And we are going to measure the particular free variable. Number one is PSQ, number two is PC, and number three is SAT. We are going to measure all these three variables. Now, in the next command, we are going to test the causal relation or the impact of PSQ and PC on SAT, on satisfaction. So this is basically the regression model where you need to specify the dependent variable DV first and then IVs after that. So we have SAT, the dependent variable, and there are two IVs, PSQ and PC. So these two IVs influence SAT. So we use on command, and on command is used for the regression analysis. If you are going to regress the independent variables on the dependent variables, if you are going to find the impact of independent variables on dependent variables, then you have to apply this particular sub command, on command. So, and I have already mentioned that you need to put the dependent variable first and then the all independent variables. So now I'm going to discuss the third sub command, which is with. And when you apply with command, it represents that you are going to apply the covariance between the indicators. So PSQ1 with PSQ2. So this is basically the you are going to take the covariance between these two indicators. So M plus software support the covariance based attribution modeling, while smart PLS software support the variance based attribution modeling. And for example, this particular software is uh, a smart PLS software, and we are handling the construct on the different uh, levels, and the constructs are also measured on different level. So this is the first order, and this one is the second order construct. So this particular software, Smart PLS, which is very famous nowadays, and this software support the variance-based attribution modeling, and but M plus software supports the covariance-based attribution modeling. So we are going to apply the covariance-based attribution modeling. So software will also take the covariance between the independent variables. So there would be the exogenous variables will this is the particular command we discussed, model command. And similarly, we are going to discuss the next command, which is define command. So in define command, this command allows you to transform the existing variable or variables into new variable or variables. So you can calculate different types of data or variables, like if you want to take the product of two variables by multiplying them. So you can apply this particular define command to generate some more variables or combine some variables into a single variable. And there are so many ways to apply this particular command, define command. So now the next command is the analysis command. And there are different types of analysis uh, we apply in M plus software, like general, like mixture, like two level mean the multi-level. And if you are handling the multi-level data and you are applying the multi-level modeling, then you apply this particular type of data, this type of analysis, like two level. And there is another option, EFA. So if you put that your analysis is general, so this particular analysis is used for the simple regression, or you can say the CFA models or the path models. So this particular command is also used, but you can skip it.
and because software automatically understand that you are going to apply the general type of analysis. And the last command we are going to apply in M plus software, that is output command. So in output command, this is basically the command. It will allow you to provide your desired outputs or your desired outcomes. What you need from M plus software, you need to specify by applying this output command. And if I put std yx, so it's mean I'm going to apply the general CFA, general structure question modeling technique. So there are different types of output sub commands. So after putting this particular command, output command, you need to provide the details or the type of this particular output you want to get from M plus software. So if you need model the modification indices, you can put modification indices command after writing the output command. So there are different types, but I have mentioned stdyx. So these are the commands we are going to apply in M plus software. So now this is time to open your particular SPSS file. So where is your SPSS file? I already shared with you people data file, and you need to open this data file in your SPSS software. So this is the time to follow my instruction, and this is the time for doing the commands practically, and this is the time uh, for the practical session. So I will request all participants to please open your SPSS software, and with this particular file, data file, and now we are going to make a file readable for M plus software. So this file I already shared with Dr. Kashif, and I hope that he has shared with all participants. And so you need to open this particular data सर file. इज दिस पॉसिबल कि हम इसको भी चैट में शेयर कर दें, क्योंकि डिले थोड़ा सा हो गया था शेयर करने में, तो कुछ लोगों के पास ये फाइल अवेलेबल नहीं है। तो Okay, no अगर no हम no problem sir, I can share it, no problem. बट मुझे ये बताइएगा कि डिले इतना तो नहीं हो गया कि लोगों ने सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल ना किए हो? सर 2:45 पे ये हमारे पास ईमेल आई थी। चले कोई बात नहीं, देखिए 2:45 पे भी आई है तो 3 बजे तक मेरा ख्याल है 15 मिनट से कम टाइम लगता है, और अभी आधे घंटे से ज्यादा हो गया। नहीं, मेजॉरिटी लोगों ने कर लिया, मेजॉरिटी लोगों ने कर लिया था सर। हाँ, मेजॉरिटी लोगों ने कर लिया था सर। सब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने सर इसको सॉफ्टवेयर को कर लिया है। डेटा फाइल्स भी मैक्सिमम लोगों के पास हैं। तो ठीक है, चलिए मैं शेयर कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम जी, आई एम गोइंग टू शेयर इट जी। थैंक यू सो मच। वेयर इज द चैट बॉक्स? दिस वन इज फाइल सेंड का ऑप्शन है सर। जी जी, मैं उसको देख रहा हूँ। Okay, maybe I need to close this particular file first, and then I'll be able to. I think it is uploaded successfully. So please confirm, आपने receive कर लिया file? Have you received this file? यस सर, इट्स शेयर। जी डॉक्टर साहब, होगी ये रिसीव आई? Okay, गॉट इट। that's perfect. Okay, I'm also going to share my profile, and it will help you to understand more about me. And we may collaborate, and the purpose to share the profile, we may further plan for the joint publication. So inshallah, I'm very kind to
support you people, the research community of Pakistan, the scholars and the professors. So, class, yes, please. Sir, thank you so much for your kindness. I think maximum लोग जो हैं वो they will be eager to collaborate with you and research learning और ये बड़ा dynamic process है. So I think everyone will be having a chance to collaborate you and learn something different as far as research is concerned. तो मैं भी सब colleagues को students को कहूँगा कि sir is very open and kind और इस opportunity को grab करें और maximum collaborate करने की कोशिश करें ताकि हम भी maximum learn भी कर सकें और हम contribute भी कर सकें जहाँ तक research का ताल्लुक है. जी, थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब. एंड मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता जाऊँ कि मैंने रमज़ान में एक रमज़ान ग्रुप के नाम से एक सिलसिला शुरू किया था और ये था कि जो स्टूडेंट्स और जो कोलीग्स और प्रोफेसर्स मेरे साथ एसोसिएटेड थे, हमने तकरीबन रमज़ान में 29वें रोज़े तक बल्कि 28वें रोज़े तक आई थिंक ये सारे रमज़ान में ये सिलसिला चलाया और रात हम बैठते थे 10 बजे से 12 बजे तक. लोग नॉर्मली जाग रहे होते थे रोज़ों में. तो उसमें हमने एनवीवो सॉफ्टवेयर किया. उसमें हमने क्वालिटेटिव के डिफरेंट डिज़ाइन, नैरेटिव, ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोमेनोलॉजी, एथनोग्राफी, इथनोग्राफी, केस स्टडी, ये सारी चीज़ें डिस्कस की. उसके बाद हमने M+ सॉफ्टवेयर किया. M+ सॉफ्टवेयर की तो आज की वर्कशॉप आपकी स्ट्रक्चरेशन मॉडलिंग पे है. हमने मल्टी लेवल मॉडलिंग भी इस पे किया और फिर इसी तरह हमने SPSS किया, फैक्टर एनालिसिस सारा. और फिर हमने तीसरी जो चीज़ की थी वो स्मार्ट TLS पे हेज़ के मॉडल, हमने बहुत सारे मैक्सिमम मॉडल डिस्कस किए थे जिसमें सीरियल मीडिएशन है, सीक्वेंशियल है, पैरेलल है, मल्टी मीडिएशन के मॉडल्स हैं या मॉडरेटेड मीडिएशन के डिफरेंट मॉडल्स हैं, मल्टी ग्रुप एनालिसिस है. तो ये काफ़ी सारी टाइप्स के एनालिसिस हमने उस पर किए थे. अब ये सेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट थे. मेरा पर्पज़ ये था कि लोगों को ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें डिलीवर की जाएँ, सिखाई जाएँ और ताकि पब्लिकेशन हो पूरे पाकिस्तान से. देखें, ज़रूरी नहीं कि वो लोग मेरे साथ ही पेपर करेंगे. दुनिया बहुत बड़ी है और अगर पाकिस्तान से कंट्रीब्यूशन होती है तो दिस इज़ माय कंट्री. तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोग काम करेंगे और रिसर्च वाकई जिसका इम्पैक्ट होगा, सिर्फ इम्पैक्ट फैक्टर नहीं बल्कि इम्पैक्ट के लिए काम करें. तो मेजॉरिटी आप में से मुस्लिम कम्युनिटी होगी जिसने ये सेशन ज्वाइन किया. तो बीइंग अ मुस्लिम हम पे एक जिम्मेदारी है कि यार हम मुसलमान हैं तो कुछ एक वो कलाम, वो थ्योरीज जो कुरान की हैं, जो अल्लाह ताला का कलाम है, जो बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा ईमान है उसमें, यानी कि शक की तो गुंजाइश ही नहीं है. तो अब उस पे भी हम रिसर्च करें. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि हर चीज़ है उसके अंदर. तो अब जिस तरह आप लोग माशाल्लाह रिसर्च सीख गए तो कोशिश करें कि कोई ऐसे टॉपिक्स चूज़ करें कि जिस पे जो मुसलमानों को इस्लाम के करीब करें. तो ये मैं आपको टू बी ऑनेस्ट ये बताऊं कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पेपर जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन में छपते हैं, सस्टेनेबिलिटी में छपते हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जिसमें छपी जा रहे हैं लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं है. और मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शराबी भी हैं और जिनका बैकग्राउंड बहुत, अब मैं वो वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता, दिस इज़ वेरी फॉर्मल सेशन. अब उन लोगों की थ्योरीज और उनके मॉडल्स जो इंडस्ट्री के लिए हैं, लोगों के लिए, लोगों की वेल बीइंग के लिए, या लोगों ने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अपने कारोबार कैसे करना है, ये उन लोगों के मॉडल्स हैं. तो डेफिनेटली वो मॉडल कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते. तो वो मॉडल्स जो हमें कुरान में मिले, देखिए सारा एथिक्स कि क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं. तो सिर्फ बात है कि थोड़ी सी कोशिश करने की, कि आप कोशिश करें उसमें से चीज़ें निकालें. और देखिए कुरान मजीद एक मैसेज है, एक लेटर है. इट इज़ जस्ट लाइक अ लेटर के जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के थ्रू इस कौम, इस उम्मत को पहुंचा है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिर प्रैक्टिकली करके भी वो चीज़ें दिखाई हैं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका अमली नमूना है सारे दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए, सारी इंसानियत के लिए. तो अब कहने का मकसद है कि वो जो चीज़ें, वो जो मैसेज अल्लाह की तरफ से आया, हमने अभी तक कई लोगों ने उसको तर्जुमे से पढ़ने की ज़हमत ही नहीं की और ज़िंदगी सारी गुजर जाती है और वो जो पैगाम
खालिक का मखलूक की तरफ होता है, हम उसको पढ़ भी नहीं पाते। तो अब उसको पढ़ेंगे तो उसमें से चीज़ें निकालेंगे। तो बात है कि वो लेटर ओपन तो करें, खोलें तो सही कि वो क्या पैगाम है, ज़िंदगी हमने कैसे गुज़ारनी है, कारोबार कैसे करना है और बच्चों को कैसे पालना है और उसके बाद फिर आपने ड्यूटी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो आप बस उससे निकालें मॉडल और उसको कॉन्टेक्चुअलाइज़ करें आज के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, उस पे स्केल डेवलप करें, क्वालिटेटिव रिसर्च करें और बहुत सारी चीज़ें आप उसमें निकाल के उन वेरिएबल्स को, उन चीज़ों को आज के कॉन्टेक्स्ट में आप टेस्ट कर सकते हैं और इस तरह के कोई इम्पैक्ट वाले काम करें जिसका फ़ायदा हो। तो दिस इज़ माय मैसेज टू ऑल ऑफ योर पीपल कि आप इस पे कोई काम करें और कंट्रीब्यूशन करें जिसका वाक़ई दुनिया को रियल सेंस के अंदर फ़ायदा हो। सो ऑडियंस आई होप कि आपने ये जो डाटा शीट्स है ये आपने डाउनलोड कर ली होंगी और एसपीएसएस पे इसको आपने ओपन कर लिया होगा। जी, अगर ये आपने ओपन कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स इन एमप्लस सॉफ्टवेयर। सो अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक दिस फाइल readable to M+ software because M+ software SAV फाइल को सपोर्ट नहीं करता। We need to convert it into the DAT format। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस फाइल को सेव एज करेंगे। आप अपने अपने जो SPSS सॉफ्टवेयर है उस पे जाएं और फाइल में जाके तो ये जो आपके पास ऑप्शन नजर आ रही है सेव एज की, यू नीड टू क्लिक फाइल एंड देन सेलेक्ट दिस सेव एज ऑप्शन। इस ऑप्शन को आप क्लिक करें और इस फाइल की टाइप को चेंज करें। यू नीड टू चेंज द टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल। सो इसकी टाइप क्या आप रखेंगे, DAT फाइल। DAT कौन सी वाली, टैब डिलिमिटेड। तो ये जरा देखिएगा, टैब डिलिमिटेड आपको ऑप्शन आएगी। इफ यू क्लिक the drop down list, this drop down list will show you the different types of and extension of different files, but you need to select the tab delimited file, DAT file। okay, आपने इसको select किया and never forget to uncheck this option। this option is write variable names to file। इसको uncheck कर दें। kindly मैं दोबारा repeat कर रहा हूँ, ये जो option check नजर आ रही है write variable names to file, इसको अनचेक कर दें, इसको टिक नहीं करना। अगर टिक करेंगे तो डाटा फाइल रीडेबल नहीं होगी, एरर आ जाएगा, इसको अनचेक कर दें। और थर्ड जो आपने इसमें काम करना है, these three things you should never forget to perform while you are going to make this file readable to M+ software। so the first thing is you need to select tab delimited DAT extension, and the next one is you need to uncheck this particular option, write variable names to file, इसको uncheck कर दें। and the third thing is you are going to select the local encoding in the encoding menu। so encoding को आप क्लिक करें और उसके नीचे लास्ट ऑप्शन है लोकल एनकोडिंग, वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो तीन चीजें आपने इधर परफॉर्म की हैं। द फोर्थ थिंग इज you need to provide the title of this particular फाइल। इसका टाइटल हम ये रख लेते हैं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर IUB। आपने इसका नाम रखा और इसको एक फोल्डर में आपने सेव कर दिया। अब ये चूंकि मैंने फोल्डर एक क्रिएट किया डॉक्टर फैजान अली के नाम से, ही इज माय ब्रदर, ही इज वेरी काइंड पर्सन, और इनका जो चैनल है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, उस पर भी मेरी वीडियोस अवेलेबल है, एनवीवो की भी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देखें, आप पूरा सॉफ्टवेयर सीख जाएंगे कि आपने एनवीवो सॉफ्टवेयर कैसे हैंडल करना, क्वालिटेटिव एनालिसिस आपने कैसे करना। उस चैनल का नाम है रिसर्च बीस्ट एंड दिस इज टोटली फ्री। मतलब कि हम चाह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा प्रोवाइड करें, सारी वर्कशॉप्स प्रोवाइड करें, यानी कि फैसिलिटेट करें लोगों को, ठीक है ना, यही फिलॉसफी है। अब ये जो रिसर्च चैनल है इस पे स्केल डेवलपमेंट से लेके यानी कि स्मार्ट PLS सॉफ्टवेयर, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और क्या क्या मेजर और माइनर मिस्टेक्स हैं while you are sending your research paper for the publication। तो क्वांटिटेटिव में आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, मेजर माइनर मिस्टेक्स हैं, या जो एडिटर्स हैं जर्नल के उनके
जो उनकी एक्सपेक्टेशन के साथ क्वेश्चन आंसर ये सेशन है। ये भी मेरी वीडियो है NVivo सॉफ्टवेयर पे है, ये आप देखिएगा, क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस यूजिंग NVivo सॉफ्टवेयर, एंड this is all the videos available, and all these videos are from different experts जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है। जिस तरह कोई लिटरेचर रिव्यू के एक्सपर्ट है दुनिया में, तो उसको इनवाइट किया गया, तो ये ऑलमोस्ट सारी फॉरेनर्स होंगे। इसी तरह कोई PLS के एक्सपर्ट है तो उसको इनवाइट किया गया, और कोई अगर क्वालिटेटिव का तो उसको इनवाइट किया। तो देयर आर डिफरेंट वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल। तो आप वीडियोस पे अगर क्लिक करें तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो मैंने तो अपने एक PhD के स्टूडेंट को शेयर किया, तो वो कहता है सारी रात में सर रमज़ान में ये वीडियोस ही देखता रहा। तो फिर मैं जब सुबह उठा तो मैंने कहा यार क्या बात है, कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके डोर स्टेप पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप घर बैठे हुए ये सारी चीज़ें सीख जाएं। तो ये मेरी दिस इज़ अनदर वीडियो ऑन सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग NVivo सॉफ्टवेयर। सो ये भी आप देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और बाकी जर्नल्स के जो एडिटर इन चीफ हैं उनके भी बहुत सारे इंटरव्यूज हैं स्केल डेवलपमेंट पे। ये देखें बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट है। बैबक जो तिहारी, ये बुरा नाम है इनका, तो इसको देखिएगा वीडियो के स्केल कैसे डेवलप करना। तो बहरहाल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी वंडरफुल वीडियोस ऑफ डिफरेंट वर्कशॉप्स, एंड आप इसको देखेंगे तो आपकी बड़ी लर्निंग होगी और प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये चैनल जो है मैं शेयर कर रहा हूँ आपके इसी में जो आपका पर्टिकुलर चैट बॉक्स है, इसमें मैं शेयर कर रहा हूँ लिंक। ले ये मैंने लिंक भी शेयर कर दिया। और वन थिंग मोर, एक चीज़ मैं आपको भी बता दूं कि आई एम आल्सो गेस्ट एडिटर ऑफ एन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। वी आर गोइंग टू पब्लिश अ वेरी वंडरफुल स्पेशल इशू इन 2021, और वो क्वालिटेटिव रिसर्च पे है। तो आई एम एक्सपर्ट, मतलब कि इस पे काम तो आता है, शुक्र है अल्लाह का कि मैं ये नहीं दावा करता कि मैं पूरी दुनिया में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझसे भी बहुत अच्छे लोग अवेलेबल हैं। बट मैंने इसकी ट्रेनिंग वर्कशॉप मोर देन 100 टाइम्स करवाई है क्वालिटेटिव रिसर्च पे, और मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ में क्वालिटेटिव पे। तो ये वी आर गोइंग टू पब्लिश दिस वंडरफुल इशू, एंड इफ अगर ये इसकी कंटेंट लाइन भी आप देखें, और जिसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, एथनोग्राफी क्या होती है उसको गूगल करें, फिनोमेनोलॉजी क्या होती है, नैरेटिव रिसर्च क्या है, एथनोग्राफी क्या है, एथनोमेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। और ये अगर आप देखें लर्निंग बाय डूइंग, आप इसको देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि क्वालिटेटिव भी एक दुनिया, ठीक है जी। तो आई एम गोइंग टू शेयर दिस पर्टिकुलर लिंक, एंड इट विल आल्सो helpful for the participants. Okay, audience. Now we are going to discuss this particular data file and how to make this data file readable for M+ software. So आपने क्या किया, local encoding को select किया, tab delimited को select किया, और IUB को select किया, यानी नेम आपने प्रोवाइड कर दिया। और मैंने इसका फाइल को किधर सेव किया, डाटा के अंदर M+ डॉक्टर फैजान ने इसको सेव कर दिया, IUB को सेव कर दिया, ठीक है जी। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर कमांड सेव बटन, इसको मैंने अप्लाई किया। ये आपका अगर आउटपुट पे आप देखें, जो आपकी आउटपुट है उसमें वो बताएगा कि ये डाटा आपकी सेव हो गया, इधर सेव हुआ, पाथ भी बता रहा है वो कि दिस डाटा इज सेव्ड टू दिस पर्टिकुलर पाथ, और M+ डॉक्टर फैजान IUB.dat के नाम से ये डाटा सेव हो गया। देयर आर 32 डिफरेंट वेरिएबल्स, और देयर आर 387 केसेस, यानी 387 सैंपल है जो डाटा है आपके पास, ठीक है। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स कि इस डाटा फाइल को आप मिस यूज ना कीजिएगा। ये डाटा फाइल प्योरली इस पर्पस के लिए, लर्निंग पर्पसेस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा या इसको आप फर्दर आगे
जिस पर ट्रस्ट ना हो उसको शेयर ना कीजिएगा, और खुद भी इसको रीजनरेट करके इसके नाम चेंज करके तो कोई डाटा अपने पास से कोई यूज करके तो काइंडली पेपर ना, क्योंकि ये टोटली अनएथिकल है। तो दिस इज द ओरिजिनल डाटा फाइल, ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो कोशिश करें कि इसको आप अपने पास सेव रखें और इसको मिस यूज ना होने दें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डाटा फाइल हमने क्रिएट की है, SPSS को कन्वर्ट किया, SAV फाइल को DAT के अंदर, DAT के अंदर कन्वर्ट किया। अब हमने नाउ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्रिएटिंग दिस पार्टिकुलर डाटा फाइल, वी आर गोइंग टू यूज M+ सॉफ्टवेयर। तो आप M+ सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें, M+ को ओपन कर लें काइंडली। अगर आपने M+ ओपन कर लिया तो यकीनन आपने वो जो जावा उसमें ग्राफिक्स है वो भी इंस्टॉल की होगी। मैंने कहा था कि जावा सॉफ्टवेयर भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जी, जिन लोगों ने तो उसको डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, तो आई बिलीव के प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको कोई भी, यानी उनकी डायग्राम्स वगैरह ओपन होंगी। तो इट विल नॉट टेक मच टाइम, अगर आप उसको जावा को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें तो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके ऑडियंस, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द M+ फाइल, और उसको कैसे क्रिएट करेंगे, हमने फाइल में जाना है और फिर न्यू पे क्लिक करना, फाइल और फिर न्यू पे क्लिक करेंगे। जी, काइंडली फाइल पे जाएं और न्यू पे क्लिक करें। मैं थोड़ा सा स्लोली चलूंगा, क्योंकि अगर आप में से कोई कमांड्स में पीछे रह जाता है तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। जी, अभी मैं टाइटल प्रोवाइड करने लगा हूँ। इसका टाइटल इज SEMIUB कॉलन। मैंने इसका टाइटल दे दिया, आप इसका टाइटल कोई भी दे दें, आपकी मर्जी है। जिस तरह मैंने स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग इसका टाइटल दिया। Okay, after providing this title command, now we are going to apply the data command, data, और फिर आपने कॉलन उसके साथ डालना है। कमांड के बाद आपने कॉलन डालना। When you put colon, it software will automatically understand कि आपने कमांड को अप्लाई की है। और आपको पता है, एज यू नो, मैंने स्लाइड्स पे ये चीज़ें मेंशन की थी, ये मैंने आपकी आसानी के लिए मेंशन की है। आज मैंने दिल लगा के ना ये स्लाइड्स बनाई हैं कि ताकि आपको आसानी हो, जब आप इसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करें तो सारी कमांड्स आपके सामने हो, आपको प्रॉब्लम कोई ना हो। ये मैंने लिख दी हैं सारी इधर। अच्छा, अब देखें, आपके पास है डाटा। डाटा के बाद आपने लिखना फाइल इज इक्वल टू, जो भी फाइल है उसका पाथ आपने इधर प्रोवाइड करना। तो अब हमें काम करने लगे। इस कमांड को अप्लाई करने से पहले ये जो इनपुट फाइल है N+ की, इसको सेव करने लगे। नाउ वी आर गोइंग टू सेव दिस इनपुट फाइल। तो इसको सेव किधर करेंगे, फाइल में जाके आप सेव पे क्लिक करें, फाइल सेव, और इसको सेव उसी जगह पे कर दें जिस जगह पे आपकी डाटा फाइल पड़ी है। फॉर एग्जांपल, मैंने वो डाटा किधर क्रिएट किया था, डाटा में जाके M+ डॉक्टर फैजान अली फोल्डर में जाके, तो मैंने अपनी वो डाटा फाइल क्रिएट की थी जिसका नाम क्या था, जी, IUB.DAT फाइल। चूंकि ये देखें नीचे INP फाइल वो सिर्फ शो करा रहा है। अगर मैं ऑल फाइल्स करता हूँ तो मुझे अपनी वो फाइल भी नजर आएगी, ये वाली IUB.DAT फाइल नजर आ रही है। तो अगर आप इस सेम फोल्डर में सेव कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना कि मतलब कि यानी कोशिश करें, ट्राई टू सेव दिस इनपुट फाइल इन दिस सेम फोल्डर वेयर यू हैव प्लेस्ड योर डाटा फाइल। जो आपकी DAT फाइल है, डाटा फाइल जो SPSS की फाइल है, जिस जगह पे आपने सेव की है M+ की भी जो इनपुट फाइल है, आप उधर ही सेव करें उसी फोल्डर में। आपको पाथ कंप्लीट प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, IUB मैंने प्रोवाइड किया, इधर नेम उसका रख दिया, यानी कि आई एम गोइंग टू सेव द इनपुट फाइल। इसका नाम आप जिस तरह ये ऑटोमेटिकली सेव कर रहा है, इनपुट M+ MP टेक्स्ट
वन के नाम से आपके पास आ रहा होगा, तो आप मेरे पास आ रहा है, अगर इसको मैं सेव करूँ आई थिंक 4 के नेम से, क्योंकि मैंने उससे पहले भी इस पे ये लगाई है इनपुट, तो मेरे पास m+mp text 4 आ रहा है, तो ठीक है आपके पास 1 आ रहा होगा, इसको जस्ट सेव कर दें सेम फोल्डर में जिस जगह पे आपने डाटा फाइल dat फाइल सेव की है। बार बार मैं यही बात कर रहा हूँ, रीजन इज दैट कि अगर आप डिफरेंट फाइल को सेव करेंगे लोकेशन पे तो इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। जी आप इसको सेव कर दें, आपने सेव कर दी। अब डाटा के आगे आप यानी कि मैंने आपको बताया कि आप क्या लिखते हैं जी, इफ यू रिकॉल स्लाइड्स पे भी मेंशन है कि फाइल इज इक्वल टू यानी फाइल का नेम आपने प्रोवाइड करना है, तो इधर क्या लिखेंगे फाइल इज इक्वल टू, तो फाइल का नेम क्या था iub डॉट dat dat फाइल, तो आपने ये प्रोवाइड की और सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। When you complete your command, you need to put semicolon to show that this line is completed. तो आपने सेमीकॉलन से बाइफरकेट करना कि फर्स्ट आपने लाइन या स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया, कमांड आपने कंप्लीट कर लिया। जी audience, now what I'm going to do in the next step, I'm going to apply the variable commands, variable command। काइंडली ये देखिएगा सॉफ्टवेयर जो है ना वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब आप कैपिटल लिखें, आप स्मॉल में लिखें, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर जो है ना वो सेंसिटिव इस टर्म में हम उसको कह सकते हैं कि अगर आपने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जी वेरिएबल में हमने क्या डाला आगे कॉलन, तो उसने उसको क्या कर दिया ब्लू। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सब कमांड प्रोवाइड करने जा रहे हैं डिटेल, यानी नेम्स आर अगर क्या आई कैन आल्सो जूम इट, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर सकता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। जी नाउ द थिंग्स आर मोर क्लियर टू यू पीपल। जी हमने क्या प्रोवाइड किया, टाइटल आपकी मर्जी है कोई भी दे दें, लेकिन डाटा के आगे आपने फाइल इज इक्वल टू iub.dat लिखना है। अगर देखें इन केस आपकी ये वाली फाइल dat फाइल डिफरेंट लोकेशन पे, और ये जो इनपुट फाइल है, ये जो ऊपर text4 या 1.inp फाइल इनपुट फाइल आपने डिफरेंट लोकेशंस पे सेव की है, तो फिर आपको ये फाइल इज इक्वल टू पूरा पाथ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा सी कॉलन यानी सी पे जाके, फिर उसके बाद आपने मतलब कि आगे पूरा पाथ प्रोवाइड करना, ठीक है, rapnavas.logi उस पे आके फिर आपने डेस्कटॉप पे आके फिर आपने फर्दर जो भी फाइल की लोकेशन है वो आपने फिर प्रोवाइड करनी है। एनीहाउ हमने जो ये दोनों फाइलें एक ही जगह पे सेव की है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एंड नो नीड टू वरी अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कमांड। सिंपल बस उसका नाम दे। नाउ आप variable names are unique, different names of variable। अब आपने नेम्स उसके प्रोवाइड करने, रिमेंबर इन योर SPSS फाइल, तो मेरे पास डिफरेंट अब नेम्स पे आ रहे हैं, आप SPSS वेरिएबल व्यू पे आए हैं, आपके पास जिस वेरिएबल नहीं इंडिकेटर्स हैं 7, तरह इसके इंडिकेटर इसके 6 इंडिकेटर्स हैं, SAT इसके भी 6 इंडिकेटर्स हैं और CIU इसके 6 इंडिकेटर्स हैं। अब देखें ये डिफरेंट इंडिकेटर्स आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, वी नीड टू कॉपी ऑल दीज इंडिकेटर्स। देखिए आप उसको मैनुअली भी लिख सकते हैं PSQ1 2, लेकिन देयर इज अ चांस कि आप कोई मिस्टेक कर दें और फिर वो सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट ना करे, वो एग्जीक्यूट ना करे। तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है कि आप क्या करें कि SPSS सॉफ्टवेयर में आपको देखें इसमें
ये आपके पास एक ऑप्शन आ रही है वेरिएबल. इफ यू पुट योर पॉइंटर तो इट विल शो इन द इंफॉर्मेशन बॉक्स. इंफॉर्मेशन बॉक्स में वेरिएबल्स लिखा हुआ नजर आएगा. आप एसपीएस और उस पे जो वेरिएबल की ऑप्शन नजर आ रही है आपको, आप और फिर उसके बाद वो दीज आर द वेरिएबल नेम्स. ये वेरिएबल के नेम आ रहे हैं. आपने क्या करना, कंट्रोल ठीक है जी. इसको कंट्रोल ए किया, ये सारे सिलेक्ट हो गए. सिलेक्ट हो गए मीन कॉपी हो गए. अब आपने उसको पेस्ट करना. हमने सेपरेटली कॉपी की कमांड अप्लाई नहीं की, हमने सिर्फ सिलेक्ट किया सबको. तो एक को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल ए प्रेस करें, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे. फिर आपने पेस्ट पे क्लिक करना. पेस्ट पे क्लिक कर दें. जैसे ही पेस्ट पे क्लिक करेंगे एक सिंटेक्स विंडो ओपन होगी, इसकी सिंटेक्स एडिटर, ये जो एसपीएस सॉफ्टवेयर का, उसमें वो सारे जो वेरिएबल के नेम्स हैं, इंडिकेटर्स के नेम हैं, वो आपको शो कराएगा. आपने बस इसको कॉपी करना, सिलेक्ट करके कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज करें और मिनिमाइज करके इसको इधर एसपीएस को भी मिनिमाइज कर दें. नाउ यू आर ऑन एम प्लस सॉफ्टवेयर. अब इधर आगे पेस्ट कर दें. इधर आपने ये सारे वेरिएबल नेम्स पेस्ट कर दिए. अब जब आपने इधर पेस्ट किए हैं तो वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड के एम प्लस सॉफ्टवेयर जो अगर आपके डाटा ज्यादा आपके करेक्टर लाइन के अंदर वर्ड्स ज्यादा हैं तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता. तो ट्राई टू रिड्यूस इट. आप इसको रिड्यूस कर लें. जिस तरह पी एस क्यू 1 से लेकर 7 तक, यानी फर्स्ट वेरिएबल मैंने उसको ब्रेक डाउन किया लाइन को, पीसी 1 से लेकर 7 तक इसको ब्रेक डाउन किया और पीपी 1 से 6 तक ब्रेक डाउन किया और एस टी 1 से 6 तक ब्रेक डाउन किया और सी आई यू 1 से सी आई यू 6 तक ब्रेक डाउन किया और उसके बाद फिर हमने कॉलन सेमी कॉलन लगा देना. सेमी कॉलन पुट कर दिया. इसके बाद क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द यूज वेरिएबल कमांड. देखें हमने यूज वेरिएबल्स आर, देखिए इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी लिखने में. ट्राई टू बी वेरी सेंसिटिव कि आपने जब लिखना है तो खुद भी आप सेंसिटिव रहें कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए. अदरवाइज जितनी मेहनत है वो सारी ज़ाया चली जाएगी, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. Okay, now we are going to apply this detailed command for use variables are. अब जो use variables आ रहे हैं ना, आप इनको सारों को ही, क्योंकि हमने सारे ही अगर यूज करने हैं तो सबको ही आप कॉपी करें और उसके बाद इधर पेस्ट कर दें. आपने सबको पेस्ट कर दिया. अच्छा, अब देखें यानी कि इधर आपके पास ऑप्शन थी कि आपने अगर इधर आपके पास कितनी स्टेटमेंट्स हैं, 2 3 4 5 हैं. तो आप कहते हैं सिर्फ हमने फर्स्ट 2 जो 3 स्टेटमेंट्स है ना, यानी कि 3 वेरिएबल्स है उसको हैंडल करना, एनालिसिस करना, बाकी नीचे वाली 2 को नहीं करना. तो आप उसको डिलीट कर दें. या अगर आपने सारों को ही करना तो सारे लिखने रहने. तो यूज वेरिएबल्स के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना, वी आर गोइंग टू अप्लाई द मॉडल. After the variable command, we are going to apply the model command. Model command is very important, and as you know that when you write the model and put the colon sign, its color will become blue, and you need to write the model. And I have already mentioned earlier that there are 2 types of different models. The one is measurement model, and the second one is path model or the relationship model. So we are going to apply the models one by one. So the first model we are going to apply, we can also copy and paste. टाइम बचाने के लिए आप इसको कॉपी करें सारों को, बिकॉज हमने सारों के मॉडल्स क्रिएट करने हैं. इसको कॉपी करें और फिर मॉडल पे भी इसको पेस्ट कर दें. पेस्ट कर दिया मॉडल पे. Okay, now
इन द फर्स्ट मेजरमेंट मॉडल, यानी जो PSQ है, इसको आपने मेजर कैसे किया? आपने डिफरेंट वेरिएबल से इसको मेजर किया। PSQ को डिफरेंट इंडिकेटर से किया, 7 इंडिकेटर से। तो इस कॉन्स्ट्रक्ट का हम नाम क्या रखेंगे? PSQ। और फिर सब कमांड क्या अप्लाई करेंगे मेजरमेंट मॉडल के लिए? बाय कमांड अप्लाई की, यानी वी आर टेलिंग द सॉफ्टवेयर दैट इफ यू calculate or if you compute or if you measure this particular variable PSQ, तो आप कैसे मेजर कर सकते हैं? आप ये सारे इंडिकेटर्स को यूज करेंगे ताकि एक कॉन्स्ट्रक्ट डेवलप हो सके, और वो क्या हो? PSQ। तो इसके बाद जब आपने इसको मेंशन किया तो आपने सेमीकोलन का साइन इस पे पुट अप करना। Now similarly we are going to apply the same command for the second variable PC by PC 1 2 3 4 करके लास्ट पे आपने सेमीकोलन पुट अप करना। देखिए ऊपर जो आपने वेरिएबल में मेंशन किया था उसमें आपने सारों के साथ सेमीकोलन पुट अप नहीं किया, लेकिन एंड पे कर दिया, ठीक है। लेकिन इधर क्या है, ये एक सेपरेट मॉडल्स हैं, यानी जो फर्स्ट PSQ है ये सेपरेट मेजरमेंट मॉडल है जो मेजर कर रहा है PSQ को, तो इसके लिए आपने सेपरेट सेमीकोलन मेंशन करना है और सेकंड के लिए सेपरेट सेमीकोलन मेंशन करना है। इसी तरह देयर इज अ थर्ड वेरिएबल, उसके लिए भी सेपरेट सेमीकोलन मेंशन करना। फोर्थ है, उसके लिए भी सेपरेट सेमीकोलन मेंशन करना। अब थर्ड पे चलते हैं, PP। तो PP अगर आपने कैलकुलेट करना, हाउ यू विल कैलकुलेट द PP? तो इसको लिखेंगे PP बाय, यानी PP 1 2 3 4, उस तरह से हमने उसको मेजर करना है। ओके, सिमिलरली वी आर गोइंग टू मेजर SAT। इसको लिखेंगे SAT बाय SAT 1 SAT 2 SAT 3 SAT 4 5 एंड 6। ओके, इसी तरह CIU को आपने मेजर करना, इसको हमने CIU बाय CIU 1 CIU 2 CIU 3, इस तरीके से आपने इसको मेजर कर लिया। अच्छा जी, ये तो मेजरमेंट मॉडल हो गया। हमने इस पे ना PLS कमांड लगा लिया, ये बेसिकली ओरिजिनल रिसर्च है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये इसमें PSQ है, परसीव्ड सर्विस क्वालिटी, ठीक है जी। और इसमें PP का मतलब है परसीव्ड प्राइस, और उसके बाद लास्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस, परसीव्ड सर्विस क्वालिटी और परसीव्ड कन्वीनियंस। इसका इम्पैक्ट आ रहा है सेंटर में सेटिस्फेक्शन के ऊपर आ रहा है, सेटिस्फेक्शन पे। ये देखें, परसीव्ड सर्विस क्वालिटी, परसीव्ड प्राइस और लास्ट पे क्या, परसीव्ड कन्वीनियंस। इसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? सेटिस्फेक्शन पे। सेटिस्फेक्शन सेंटर में एक वेरिएबल यूज किया, इट इज द मीडिएटिंग वेरिएबल। सेटिस्फेक्शन सेंटर में आपने यूज किया पाथ पे। अच्छा, अब यानी इसका मतलब है कि ये इन तीनों का इम्पैक्ट पहले इस पे आएगा, सेटिस्फेक्शन पे, PSQ का, PP का और PC का। सेटिस्फेक्शन पे आएगा, SAT पे आएगा। उसके बाद SAT का इम्पैक्ट किस पे जाएगा? कंटिन्यूस इंटेंशन टू यूज, इस पे आएगा, CIU पे आएगा। अच्छा, हम एक काम करने लगे हैं, ये मॉडल इसको डेवलप करते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे ये चलेगा। ये तो था आपका मेजरमेंट मॉडल। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? ऑन। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है, परसीव्ड सर्विस क्वालिटी। सेकंड वेरिएबल क्या? PP, परसीव्ड प्राइस। और थर्ड वेरिएबल आपके पास क्या है? परसीव्ड सर्विस क्वालिटी और परसीव्ड प्राइस, और लास्ट पे परसीव्ड कन्वीनियंस। इन तीनों का इम्पैक्ट आ रहा है SAT पे, सेटिस्फेक्शन पे। इस तरह से ये मॉडल है। और सेटिस्फेक्शन का आगे से इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? कंटिन्यूस इंटेंशन टू यूज, इस पे आ रहा है। चले जी, अब ये देखिएगा, हमने अब पाथ मॉडल पे चलना है, रिलेशनशिप मॉडल पे चलना है, इसके इनर मॉडल पे चलना है। अब जो
पाथ मॉडल है, रिलेशनशिप मॉडल है, आपको पता है उसमें हम रिग्रेशन लगाते हैं, इम्पैक्ट चेक करते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे कि रिग्रेशन अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था while we were discussing the concepts and commands in slides, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल को मेंशन करते हैं, यानी सेट को हम पहले मेंशन करेंगे, एसएटी सेट, और फिर क्या कमांड मेंशन करते हैं, ऑन, यानी सेट ऑन। उसके बाद आप देखें सेट ऑन पे कौन कौन से वेरिएबल हैं। सेट ऑन PSQ है, PP है और PC है, तो हमने लिखा PSQ। PSQ क्या है वो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, यानी पहले स्टेप में PSQ कैलकुलेट हो जाएगा, और PSQ कैसे कैलकुलेट होगा, सारे इंडिकेटर्स के थ्रू कैलकुलेट होगा, ठीक है, मेजरमेंट मॉडल। और PSQ कॉन्स्ट्रक्ट लिखा, फिर स्पेस PP, फिर स्पेस PC, फिर सेमीकोलन, ये हमने एक मॉडल कंप्लीट कर लिया, यानी सेट पे ये 3 वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और उसके बाद आगे CIU पे CIU पे कौन सा वेरिएबल इफेक्ट कर रहा है, SAT सेट, सेमीकोलन लगा दिया, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सेमीकोलन। ये देखें इस पे हमने ऑन कमांड लगाई है, ऑन, यानी CIU ऑन SAT, और इसी तरह SAT ऑन 3 वेरिएबल लिखे हैं, PSQ परसीव्ड सर्विस क्वालिटी, परसीव्ड प्राइस एंड परसीव्ड कन्वीनियंस। अच्छा, अब ये जो ऑन कमांड है ये किस लिए अप्लाई की जाती है, मैंने आपको डिस्कस भी किया, दोबारा बता रहा हूँ कि रिग्रेशन के लिए यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर कमांड फॉर द रिग्रेशन एनालिसिस, एंड ये आपने लगा दी। अच्छा, अब लास्ट पे आप क्या करेंगे भाई, ये मॉडल आपने बना लिया, लास्ट पे आपने आउटपुट निकालना है इसका, क्या दिखाएगा आपको, यानी वो जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, ब्लू। तो इस पे हम फिर स्टैंडर्ड STDYN X कॉलन अप्लाई कर देंगे। That would be the output. Okay, now we need to हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी उस पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर दिया था। After saving this particular input file, we need to use the command run. Run पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रन पे क्लिक किया, मेरे पास ये फाइल आ गई, आउटपुट mptxt4.out। अगर जिन लोगों का एरर आ गया, कोई मैसेज उसने दे दिया, इसका मतलब है कहीं पे आपने मिस्टेक की है, तो कहीं पे आपने गलती कर दूंगा, जिस बंदे ने कोई गलती की होगी उसके भी चांस खत्म हो जाएंगे, यानी वो इसी को बाद में, यानी इस वर्कशॉप के बाद में शेयर कर दूंगा। तो आप क्या करेंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली यानी कि इसको यूज करेंगे और कॉपी पेस्ट करेंगे, और आपको मसला फिर समझ आ जाएगा जहां आपने गलती की। तो दैट इज द आउटपुट फाइल, हमने ये आउटपुट बना लिया, ठीक है। इवन के अगर मैं कोशिश इसको ना मैं मिनिमाइज करता हूँ, और ये मेरी इनपुट फाइल है, ये इनपुट फाइल है मेरी। इनपुट फाइल को ना मैं सारे को कॉपी कर देता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि अगर कोई बंदा गलती कर बैठा तो वो करेक्ट कर दे इसको। ये मैंने इधर शेयर कर दिया। ओके, नाउ
आपने आउटपुट इसको कैलकुलेट तो कर लिया है, इसको मिनिमाइज करता हूँ, फाइल में जाके आउटपुट 4 इसको मैंने ओपन किया, ये मेरी आउटपुट फाइल है जो अभी मैंने जनरेट की है। अच्छा, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ एम प्लस सॉफ्टवेयर। एम प्लस क्या करता है कि इनपुट फाइल को रेप्लिकेट कर देता है आउटपुट में भी। तो जो चीजें हमने इनपुट पे लगाई हैं वो उसने आउटपुट में भी रेप्लिकेट कर दी, ठीक है ना, ये उसने रेप्लिकेट कर दी सारी, यानी ये सारी इनपुट रीडिंग है उसने रेप्लिकेट कर दी, और आउटपुट देखें इधर उन्होंने स्टार्ट कर दी। ये आपके वेरिएबल्स हैं और ये टोटल सारी कंटिन्यूस वेरिएबल हैं, क्योंकि हमने std_yx कमांड लगाई है। std अगर सिर्फ y लगाएं तो इसका मतलब आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है। एंड दिस इज बेसिकली अ क्राइटेरिया, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं गुडनेस ऑफ फिट के काइस के। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है काई स्क्वायर की, जब आप गुडनेस ऑफ फिट लगाते हैं तो कैलकुलेटर में चले जाएं आप, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। मेरे पास जो वैल्यू आ रही है इसकी काई स्क्वायर की, वो आ रही है 1264। आई नीड टू 1264 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड में करूंगा किसके साथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 457 divided by 457. So my value is 2.7, which is less than 3. So इसकी वैल्यू आपके पास 3 से कम आनी चाहिए in the chi-square when you divide the actual value by the degree of freedom. उसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू 3 से कम आनी चाहिए। ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज, बहुत सारे क्राइटेरिया, और ये CFI और TLA के क्राइटेरिया, इसकी वैल्यू 0.9 के पास आनी चाहिए, जो कि ये भी 0.9 के पास है, ये भी 0.9 के पास है, विच इज एक्सेप्टेबल। ठीक है जी, आपके फिट इंडाइसिस जो है, गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस। इसके बाद आगे SRMR की वैल्यू, ये भी आपकी कम आ रही है 0.05 0.08, जो इसके लिए एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं। और नाउ इट इज शोइंग द मॉडल रिजल्ट्स। ये आपको हर एक वेरिएबल के सेपरेट एस्टीमेट बता रहा है, एस्टीमेट मीन लोडिंग वैल्यू बता रहा है। बट वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड, these are not the loading values, these are not the standardized loading value, these are the unstandardized loading values। तो हमने स्टैंडर्डाइज्ड लोडिंग वैल्यूज पे जाना, इसको आप इग्नोर कर दें। इंटरसेप्ट भी बता रहा है, सारे वेरिएंस भी बता रहा है इन डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्ट्स, रेजिडुअल वेरिएंस भी बता रहा है। एंड दिस इज बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड लोडिंग वैल्यू। सो आपने STD_YX स्टैंडर्डाइजेशन पे जाना और इधर से लोडिंग वैल्यू सारी चेक करनी है। और ये देखें, ये जो आपका PSQ है, फर्स्ट कॉन्स्ट्रक्ट है, ये किस तरह से बना है ये कॉन्स्ट्रक्ट, इन सारी आइटम्स की बेस पे हमने इसको डेवलप किया। एंड यू कैन से कि 2 टेल पे P वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है, यानी इट शुड बी लेस देन 0.05। तो ये ठीक आ रही है, कोई आइटम आपको निकालने की जरूरत
नहीं है। हाँ, यू कैन एक्सक्लूड दीज टू आइटम्स क्योंकि इनकी वैल्यू 0.6 या 0.7 से कम है। यू मे एक्सक्लूड, बट अगर स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन ना हो तो फिर आप उसको नहीं निकालते। उसको ओवरऑल मॉडल को वो डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो कुछ लोग होता है ना कि वो धड़ाधड़ आइटम्स को निकालना शुरू कर देते हैं। इवन कि स्मार्ट पीएलएस में मैंने देखा कि वैल्यू नहीं आ रही उसको निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, अब इसी तरह देखें सेट की वैल्यूज हैं डिफरेंट, उसके इंडिकेटर्स की लोडिंग वैल्यूज हैं और पीपी की हैं, और इसी तरह सिमिलरली जो कंटिन्यूस इंटेंशन टू यूज की हैं और ये सेट की। अब ये तो ऊपर वाले जितने मॉडल्स थे ये कौन से थे? मेजरमेंट मॉडल कि आपने अगर मेजर करना है पीपी को तो आप इन इंडिकेटर्स के थ्रू मेजर करेंगे और ये उनकी फैक्टर लोडिंग वैल्यूज हैं और पी वैल्यू भी आपकी सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे रिलेशनशिप मॉडल पे ना। रिलेशनशिप मॉडल ये मैंने आपको बताया था उसके लिए कमांड कौन सी यूज होती है? ऑन। तो ऑन का मतलब ये है कि ये वैल्यू सारी आपके पास आ रही हैं। दीज आर दी रिग्रेशन कोएफिशिएंट वैल्यू, दीज आर दी स्टैंडर्ड एरर्स एंड दिस इज द टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू। हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू? हम उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड एरर पे, तो आपकी टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू निकलती है। यू कैन ट्राई इट, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मेरा ख्याल मैंने उसे बंद कर दिया। कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में अगर आप इसको देखें कि आपके पास जो रिग्रेशन वैल्यू आ रही है 0.259 आ रही है। इसको मैंने लिखा 0.259 और इसको डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड एरर पे। स्टैंडर्ड एरर क्या? 0.081, 0.081। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 3.19, यानी इसको राउंड कर दो तो 3.2 हो जाएगी ना, क्योंकि ये 7 है। इसको राउंड कर दें 3.2, और आप इसको देखें जरा, मैं जूम भी करता हूँ कि क्या ये टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू 3.2 नहीं है आपके पास? 3.203। सो टी स्टैटिस्टिक्स कैसे निकलती है? व्हेन यू डिवाइड योर रिग्रेशन वैल्यू को आप डिवाइड स्टिक्स वैल्यू एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 1.96। ये आपको बताती है गुडनेस ऑफ इट, इंडिविजुअल गुडनेस ऑफ इट। इंडिविजुअल एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे गुडनेस ऑफ इट। अगर 96 क्राइटेरिया 95% कॉन्फिडेंस लेवल का, ठीक है ना। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 99% हो तो उसकी वैल्यू फिर 2 से भी ज्यादा आनी चाहिए। तो अब हम तो 95 जो टाइप 1 एरर है, स्टैटिस्टिकल एरर, टाइप 2 एरर, दोनों से बचने के लिए हम ना 90% कॉन्फिडेंस लेवल रखते हैं ना 99% कॉन्फिडेंस लेवल, बल्कि हम दरमियान में रहते हैं 95% पे। तो उस 95% क्राइटेरिया पे आपकी टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 1.96 से ज्यादा आनी चाहिए। अब तीनों केसेस में 1.96 से ज्यादा। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी इसकी वैल्यू 1.96 से ज्यादा है, ऑटोमेटिकली पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन 0.05 आती है। तो ये देखें तीनों केसेस में इसकी वैल्यू लेस देन 0.05 है। ये पी वैल्यू है। अगर आप ऊपर देखें ना, ऊपर जाके जहां से हमने ये टेबल शुरू किया था, तो इस पे क्या लिखा होगा? इस पे पी वैल्यू लिखा होगा। ये पी वैल्यू इधर लिखा होगा, यानी प्रोबेबिलिटी वैल्यू, और इधर क्या लिखा होगा? आपकी टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू, टी वैल्यू, और इधर क्या लिखा होगा? एस डॉट ई। एस डॉट ई स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एरर, और इधर लिखा होगा एस्टिमेट्स या बीटा वैल्यू। ये बीटा कोएफिशिएंट वैल्यूज हैं, ठीक है जी। बीटा जो भी बीटा वैल्यूज हैं, बीटा 1 है, 2 है, 3 है, जो बीटाज हैं, these are the beta values. Now what we are going to do here, I'm going to draw this particular path model. देखिए मैंने आपको बताया था SAT पे 3 वेरिएबल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कौन कौन से? PSQ,
सेकंड वेरिएबल है पीपी और थर्ड है पीसी। तीसरा पीसी। ओके, ये तीनों इस पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन तीनों की बीटा वैल्यूज आ जाएंगी। फर्स्ट की बीटा वैल्यू क्या आपके पास 0.259, मैंने लिखा था 0.259 और दूसरे की बीटा वैल्यू क्या है 0.425 और थर्ड की बीटा वैल्यू क्या, थर्ड की बीटा वैल्यू है 0.218। ओके, अब ये सारी जो है वो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है। आप इधर स्टार लगा के नीचे उसकी डिटेल वगैरह लिख सकते हैं कि ये p वैल्यू इज लेस देन 0.05। ओके, ये तो आ गई आपके पास वैल्यूज किसकी, इंडिपेंडेंट थी 3 वेरिएबल्स की मीडिएटर के साथ। अब आपने आगे फर्दर मीडिएटर की वैल्यूज आगे आपने उसका रिलेशन किसके साथ देखना, उसका रिलेशन आपने देखना कंटिन्यूस इंटेंशन टू यूज, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है कंटिन्यूस इंटेंशन टू यूज की सैट के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ, ये काम आ रही है इसकी, लेकिन पी नहीं ठीक आ रही है, सॉरी पॉइंट बहुत अच्छी आ रही है 0.866 आ रही है एंड दिस इज द स्टैंडर्ड एरर, और पी वैल्यू इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.866, इधर हमने लिख दिया 0.866। तो इन दिस वे हमने ये पाथ मॉडल भी टेस्ट कर लिया और रिलेशन भी टेस्ट कर लिया कि किसका किसके साथ रिलेशन सिग्निफिकेंट है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। इसको मैं रिमूव कर दूंगा। इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ओके, इसके अलावा भी देखें, अगर इसको नीचे करें ना तो आपके पास डिफरेंट जो फाइंडिंग्स है वो शो करता है। ये आर स्क्वायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, this one. So we are interested to know about the other of stat as satisfaction and continuous intention to use. So you know about the this particular R square value. This is the coefficient of determination. और जो क्या बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर 100% चेंज आ रही है ना, तो कितने परसेंट रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो उस पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज के देखें फॉर एग्जांपल एसएटी जो है सेटिस्फेक्शन, इस पे 3 वेरिएबल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कौन कौन से, परसीव्ड सर्विस क्वालिटी, और दूसरा वेरिएबल क्या था परसीव्ड प्राइस, और तीसरा था परसीव्ड कन्वीनियंस। 3 वेरिएबल इस पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एसएटी में अगर 100% चेंज आ रही है तो 65.8% चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 3 वेरिएबल्स पे है, और रिमेनिंग 35 या 34.2% चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर वेरिएबल्स पे है जिनको हमने अपने मॉडल में यूज नहीं किया, वी इग्नोर देम इन आवर मॉडल। तो ये भी गुडनेस ऑफ फिट का क्राइटेरिया आर स्क्वायर वैल्यू, इसको आप रिपोर्ट करते हैं। और इसी तरह देखें जो आपकी इसकी वैल्यू भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ रही है। और इसी तरह CIU जो है यानी कंटिन्यूस इंटेंशन टू यूज, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.750। इसका मतलब है कि इस किसका इन्फ्लुएंस इस पे आ रहा है, CUIU एक ही वेरिएबल का आ रहा है, सेटिस्फेक्शन का आ रहा है,
तो हम ये कह सकते हैं कि इतना ये अच्छा इसकी वैल्यू आ रही है 0.75 आ रही है, मीन कि अगर 100% चेंज आ रहा है CIU में तो 75% रिस्पॉन्सिबल जो है वो SAT है, सेटिस्फेक्शन है, और रिमेनिंग 25% जो है वो अदर वेरिएबल्स हैं, और इसकी वैल्यू भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ रही है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका 99% से भी ज्यादा है और चांसेस ऑफ एरर 1% से भी कम है। सो दीज आर दी R-square value you can report while reporting your findings. So now this is the time to explore the diagram. तो मैंने आपसे कहा था जिन लोगों ने जावा इंस्टॉल कर लिया होगा उनकी डायग्राम खुलेगी, जिन लोगों ने जावा इंस्टॉल नहीं किया उनकी डायग्राम नहीं आएगी। जी, तो जावा के लिए जावा फिर शो करता है ना, ग्राफिकल बना देता है आपके सारे प्रोग्राम्स को, ना सिर्फ M+ बल्कि दूसरे प्रोग्राम्स को भी ग्राफिक्स में सपोर्ट करता है। तो अभी हम अप्लाई करने जा रहे हैं, खोलने जा रहे हैं इसकी डायग्राम। तो कैसे ओपन करेंगे आप? डायग्राम पे क्लिक करें, यू नीड टू क्लिक डायग्राम एंड द नेक्स्ट कमांड इज व्यू डायग्राम। व्यू डायग्राम पे क्लिक करें। ओके, यस, दिस इज माय गुडनेस, सॉफ्टवेयर हैज created this particular diagram showing the both measurement and path models. Okay, देखिए this is the diagram and in this particular diagram one thing you should keep in mind, these are the three independent variable। आपको पता ही है कौन कौन से हैं, perceived service quality है जी, परसीव्ड कन्वीनियंस है और परसीव्ड प्राइस है। इसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? आपके सेटिस्फेक्शन पे आ रहा है। सेटिस्फेक्शन को हमने मेजर किया इन इंडिकेटर्स के थ्रू एंड रिमेंबर के इस पे जो लोडिंग वैल्यूज आ रही हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड अनस्टैंडर्डाइज्ड लोडिंग वैल्यूज। इसको हमने स्टैंडर्डाइज में कन्वर्ट करना, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? आप व्यू पे जाएं और ये पैरामीटर एस्टिमेट्स की बजाय आप इसको सिलेक्ट कर दें STD YX एस्टिमेट्स के अंदर आप इसमें कन्वर्ट करें। अब आप देखें कि ये जो आपके पास आ रही है बीटा वैल्यूज आ रही हैं, मैं शो कराता हूँ आपको। दिस इज द बीटा वैल्यू एंड द नेक्स्ट वन इज, ये आपकी बीटा वैल्यूज हैं। दिस इज योर बीटा वैल्यू एंड दिस इज नॉट द P वैल्यू। ये ना समझ लीजिएगा दिस इज द P वैल्यू, ये P वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। ये आपके पास कौन सी वैल्यू है? ये P वैल्यू नहीं है, बल्कि ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर है जो ब्रैकेट में वो शो करा रहा है। स्टैंडर्ड एरर, बीटा वैल्यू और स्टैंडर्ड एरर। अगर P वैल्यू आपको चाहिए तो आप उधर से ले, जो टेबल मैंने आपसे शेयर किया है उसकी आउटपुट फाइल के अंदर। ओके, एंड दिस इज द एरर टर्म। हर एक जो आपका कॉन्स्ट्रक्ट है ना उस पे एरर आपको नजर आएंगे, एरर टर्म नजर आएंगे, ठीक है ना, जो भी आपके कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। यानी एरर टर्म जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी एंडोजनस वेरिएबल है। एंडोजनस चाहे आपका मीडिएटर हो चाहे आपका डिपेंडेंट हो, उस पर आप एरर टर्म यानी लगाते हैं। ये अगर आपने माउस किया हो तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि उस पर भी एरर टर्म आप यूज करते हैं। ओके, सेकेंडली अब ये देखें, दीज आर द लोडिंग वैल्यू। ये सारी लोडिंग वैल्यूज हैं और लोडिंग वैल्यूज के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू नहीं आ रही। दिस इज नॉट द P वैल्यू, दीज आर द स्टैंडर्ड एरर। ब्रैकेट में वो क्या शो कर रहा है? स्टैंडर्ड एरर शो कर रहा है। सो स्मार्ट PLS के अंदर ऑप्शन आती है कि यू कैन शो द P वैल्यू एंड द पाथ कोएफिशिएंट वैल्यू इन द डायग्राम, बट M+ उसको सपोर्ट नहीं करता। यानी इसमें ऑप्शन ही नहीं है कि आप अपनी P वैल्यू को डायग्राम में शो करा सकें। आपके पास यही ऑप्शन आ रही है, तो आपने इसी पे क्लिक करना है STD YX। ओके, नेक्स्ट आगे देखिएगा, ये सारे पाथ की बीटा वैल्यूज आ रही हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज 1 यूनिट चेंज इन PSQ यानी परसीव्ड सर्विस क्वालिटी में 1 यूनिट चेंज आए, इट विल इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन लेवल बाय 0.259 यूनिट्स। या अगर हम परसेंटेज में इसको एक्सप्लेन करें, इफ देयर इज if other factors remain constant
and there is 100% change in PSQ, it will increase satisfaction level by 25.9%. आप परसेंटेज में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं. So इसी तरह फिर आप बाकी भी जो बीटा वैल्यूज हैं उसको लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज योर इनर मॉडल. आपका पाथ मॉडल है, रिलेशनशिप मॉडल है, उसके मुताबिक आपने उसको डिस्कस करना इन बीटा वैल्यूज को. ऑल दीज 3 वैल्यूज, बीटा वैल्यूज विल बी डिस्कस्ड. और एक तो ये चीज हो गई. दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि चूंकि ये कोवेरिएंस बेस्ड स्ट्रक्चरेशन मॉडलिंग है, तो यू कैन सी द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स. ये आपको कोवेरिएंस भी इनके दरमियान में नजर आएंगे सारे. ओके, अच्छा, ये ना सिर्फ आपको कोवेरिएंस नजर आएंगे बल्कि साथ में वो आपको स्टैंडर्ड एरर भी शो कराता है. कोवेरिएंस की वैल्यू भी, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू. और इसी तरह आगे देखिएगा, जो सेटिस्फेक्शन है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको? कंटिन्यूस जो इंटेंशन टू यूज है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है. एंड इट्स वैल्यू इज वेरी गुड, एंड दिस इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट. हमने देख भी लिया इसको टेबल में. और हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज 1 यूनिट चेंज इन satisfaction, it will increase continuous intention to use by 0.866 units. I think this point is clear to you. तो ये जो एनालिसिस हमने किया, हमने मेजरमेंट मॉडल, पाथ मॉडल एक ही जगह पे हैंडल कर लिया, डिस्कस कर लिया. अब जरा अगर देखिएगा कि हम मेजरमेंट मॉडल और पाथ मॉडल सेपरेटली का डिस्कस करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे? इसको मैं क्लोज करता हूं आपकी डायग्राम को, और इसको भी आउटपुट फाइल को हमने क्लोज करना. अब देखिएगा, आप इनपुट फाइल को ना क्लोज कर दीजिएगा. आउटपुट फाइल ये जो आपके पास नजर आ रही है, m+ टेक्स्ट 4 आउटपुट, या आपके पास टेक्स्ट 1 आउटपुट है, इसको आप इधर क्लोज बटन से बंद कर दें. इनपुट फाइल बैकएंड पे आपके पास रहेगी. इनपुट फाइल की निशानी ये है कि उसमें आपको जो कमांड्स हैं वो ब्लू कलर में नजर आती हैं. वो कमांड्स आपको स्टिल ब्लू सर, अगर गलती से इनपुट फाइल बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? जी, कोई मसला नहीं सर. आप फाइल में आए और अपनी इनपुट फाइल जो आपने ओपन की थी उसको दोबारा से कर लें, कोई मसला नहीं है. थैंक यू सर. थैंक यू. वेलकम सर. ओके, नाउ इसको मैं जूम करता हूँ जरा. जूम इन, और इसको देखिएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज द मेजरमेंट मॉडल. फर्स्ट आपके पास ये 4 मेजरमेंट मॉडल्स हैं, और नीचे आपके रिलेशनशिप मॉडल है. रिलेशनशिप मॉडल अगर आप हटा दें, ऑन वाली कमांड डिलीट कर दें, मैंने कंट्रोल X कर दिया, ठीक है, डिलीट यानी कट कर दिया. लेटर ऑन मैंने उसको टोटली बंद नहीं किया, यानी कि बाद में उसको मैं पेस्ट कर दूंगा. फिर वक्त आप उसको कट करके किसी वर्ड की फाइल पे पेस्ट कर दें, ताकि बाद में आप भूल ना जाएं कि कमांड क्या आपने डिलीट की. अभी हमने क्या किया, सिर्फ मेजरमेंट मॉडल अप्लाई किया, यानी कि CFA हम कर रहे हैं, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस. अच्छा, अब आप इसको रन कर दें. सेव करनी जरूरी है, सेव कर दें. चेंजेस जो की है रन कर दें. ये रन किया तो आउटपुट आ गई. देखें, m+ MP txt4 आउट, ये आपके पास आ गई है. और उसने क्या किया, इनपुट की सारी इंस्ट्रक्शंस को रेप्लिकेट कर दिया. ये सारा उसने रेप्लिकेट किया, और नीचे उसने आउटपुट वगैरह आपको दिखा दी. सारे आउटपुट वही आएंगे, मॉडल फिट के क्राइटेरियाज, और उसके बाद लोडिंग वैल्यूज, उसकी स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज लोडिंग वैल्यूज. एक डिफरेंस ये आएगा, जो हमने ऑन की कमांड्स लगाई थी वो कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएंगे. ठीक है जी. हम एक काम करते हैं अब इसके बाद, चूंकि ये सिर्फ CFA है, पाथ मॉडल नहीं है, रिलेशनशिप मॉडल नहीं है, तो हम इसकी डायग्राम को देखते हैं कैसे बनेगी. डायग्राम में आए, व्यू डायग्राम पे क्लिक किया, और देखिएगा कि ये देखें, ये आपको याद होगा अगर आपने अमाउंस किया स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, तो बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम
वो बना देता है। अमॉस भी थोड़ा सा इस सेंस में कि अगर आप उसको मैनुअली एंटर कर रहे हैं उसके इंडिकेटर तो वो डिफिकल्ट होता है और उसमें भी कोई गलती हो जाती है, गलती हो जाए फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन इसमें समझ लें कि अमॉस की निस्बत गलती के चांस कम है क्योंकि इसने डायग्राम खुद ही ड्रॉ कर दिया। अमॉस में भी अगर आप उसको वो जो स्टैट पैकेज टूल या उसके लिए डिफरेंट जो प्लग इन ऑप्शंस हैं वो यूज करते हुए आप SPSS से पैटर्न मैट्रिसेस डायरेक्ट आप उठा के अमॉस में ले जाते हैं तो वो भी फिर गलती के चांसेस खत्म हो जाते हैं और डायग्राम खुद ही बना देता है सॉफ्टवेयर, अमॉस खुद ड्रॉ कर देता है सारा। SPSS फैक्टर एनालिसिस जब आप EFA लगाते हैं तो उधर से ही आप वो सारा जो पैटर्न मैट्रिसेस हैं वो उठा के उसको अमॉस सॉफ्टवेयर में ले जा सकते हैं, उसमें गलती के चांसेस कम है। लेकिन अगर आप खुद उसको ड्रॉ कर रहे हैं, एक एक इंडिकेटर डाल रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। जो स्मार्ट PLA सॉफ्टवेयर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ईजी टू यूज़, कि वो बहुत ईजी है यूज़ करना। आप एक क्लिक पे एल्गोरिदम या बूटस्ट्रैपिंग लगाते हैं तो एकदम से वो आपको सारे रिजल्ट निकाल देता है, ठीक है। तो उसकी निस्बत आप जो अमॉस सॉफ्टवेयर है वो कॉम्प्लिकेटेड है और M+ सॉफ्टवेयर भी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें भी जो आप कन्वर्जन वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकालते हैं वो आप मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं, यानी जो चीज़ें उसने आपको शो करा दी है। बाकी जो क्राइटेरियाज आपने रिलायबिलिटी निकालनी है या आपने वो मतलब कि उसकी AV वैल्यू निकालनी है तो वो स्क्वायर रूट वगैरह आपको सारा आइटम्स की वो लोडिंग वैल्यू कैलकुलेट करके खुद लेना पड़ेगा, फिर आपकी वो AV वैल्यू आएगी। या अगर आपने जो फॉर्मल लार्टर पे लगाना है तो वो भी आपने सारे स्क्वायर रूट्स खुद लेने हैं और मैन्युअली उसकी कैलकुलेशन करनी है। हाँ, एक प्रोफेसर है फॉरेनर है और उसकी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, M+ पे भी हैं और उसकी डिफरेंट अमॉस पे भी हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग पे भी है। तो मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। देखें आप उस पे डिटेल वगैरह ये सारी मतलब के देखते रहिएगा ताकि आपको काफ़ी उस पे लर्निंग हो। जी एक तो मैं आपसे ये शेयर करता हूँ, ये बेसिकली M+ कैलकुलेशन है, उसमें जो आपकी रिलायबिलिटी है और AV वैल्यू है, यानी कॉन्स्ट्रक्ट रिलायबिलिटी और AV वैल्यू। आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक, ये मैंने लिंक इधर पेस्ट कर दिया, YouTube का लिंक मैंने पेस्ट कर दिया। इसके चैनल पे आप चले जाइएगा और उसके बाद चैनल में आपने बहुत सारे वीडियोस बाकी भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये जो आपके पास मॉडल आया CFA कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, इस मॉडल में सारी कौन सी आ रही है वैल्यूज? अनस्टैंडर्डाइज्ड आ रही हैं वैल्यूज, ठीक है जी। अनस्टैंडर्डाइज्ड 1 से भी ऊपर है, स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाती। तो आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू सिलेक्ट करनी है। व्यू पे जाके STDYX इस पे क्लिक करें, ये अब स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज आ गई हैं और इसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। हेयर की बात करें, जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस का गुरु है जिसका नाम है हेयर एट ऑल, रेफरेंस आप देते हैं उसका, उसकी 2013 की जो बुक है 13-14 में वो कहता है कि 0.6 वाली भी लोडिंग वैल्यू एक्सेप्टेबल है। उसकी जो आई है किताब 2016-17 में, उसमें वो 0.7 कहता है, यानी क्राइटेरिया उसने टफ कर दिया मजीद। लेकिन ठीक है, उसके एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो स्टैटिशियन है, बेसिक स्टैटिशियन है, अप्लाइड स्टैटिशियन है, तो वो साथ में वो ये भी बताता है कि ये नहीं कि हम अगर उसकी वैल्यू 0.7 नहीं आ रही, 0.6 आ रही है, 0.5 आ रही है, तो उसको हम डिलीट करते जाएंगे। आप थ्योरेटिकली वो आइटम साउंड है और वो अगर आपकी रिलायबिलिटी को या वैलिडिटी को, कन्वर्जन डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को, AV को डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो देयर इज नो नीड टू एक्सक्लूड दोज आइटम्स, उसको डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि थ्योरी कहती है कि ये अगर आपने मेजर करना है एक कॉन्स्ट्रक्ट तो इन आइटम्स की बेस पे आपने उसको मेजर करना। हाँ, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम आ जाए, 0.5 से भी कम आ जाए, 0.4 से भी, 0.3 हो, 0.2 हो या माइनस में हो, तो माइनस वाली वैल्यू आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी, उनको आप निकाल दें, उनको डिलीट कर दें, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको रिटेन भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट आ रही है PSQ1 की वैल्यू वो 0.5 आ रही है, ये देखें 2 की भी 0.59 आ रही है, PSQ1 और PSQ2 की वैल्यू। तो यू हैव चॉइस टू रिटेन दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर इन द कंस्ट्रक्ट, आप इसको रिटेन कर लें, कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ गया CFA, आप अपना इसी तरह कॉपी करें, पेस्ट करें, यू कैन रिपोर्ट, यू कैन पुट इन योर रिसर्च पेपर और इन योर रिसर्च थीसिस। तो ये एक डायग्राम आ गई
और अगर दूसरी डायग्राम पे हम चलते हैं, यानी इनपुट फाइल में जो मैंने चेंजेस की थी उसको मैं पेस्ट करता हूँ। अच्छा वो पेस्ट नहीं हो रही, भूल गया मैंने, उसके बाद भी कोई कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये कमांड को एंटर कर लेते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऑन की कमांड अप्लाई करेंगे और उसके लिए सेट यानी सेटिस्फेक्शन ऑन, okay, satisfaction on PSQ PC PP colon और CIU on SAT colon, ये हमने अप्लाई किया। ओके, अब जब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, दिस इज द चेंजेस आई हैव मेड इन द इनपुट फाइल, तो इसको रन करेंगे तो कहेगा सेव करें, पहले ही सेव कर लें। रन पे क्लिक किया, एग्जीक्यूट हो गया, दिस इज माय आउटपुट फाइल। अब मॉडल को देखें, आप डायग्राम में जाएं, व्यू डायग्राम। अब इस मॉडल पे मेजरमेंट और पाथ मॉडल दोनों आ रहे हैं, ठीक है जी। इसको हम कर देते हैं स्टैंडर्डाइज लोडिंग और स्टैंडर्डाइज बीटा वैल्यूज। ये फर्स्ट रिलेशन आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया पाथ, और ये कोवेरियंस आ गई, ये जो लाइन आ रही है, और ये आपका फोर्थ रिलेशन यानी मीडिएटर का डिपेंडेंट के साथ रिलेशन आ गया। ओके, ये जितना हमने काम किया इसकी आप प्रैक्टिस करें और इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करें। अभी हम ना कोई 15-20 मिनट की ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स हो जाऊं, और उसके बाद इंशाल्लाह विल कम बैक एंड डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स। ठीक है ऑडियंस? ठीक है तो सर, ठीक है।